وزیر اعلیٰ غیر سنجیدہ شخصیت ہے. وہ کسی مسئلے کو سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کرتے بلکہ جذبات میں آ کے مائک کے سامنے جو کچھ بھی کہہ دیا. تو یہ ایک ذمہ دار شخصیت کی رویہ نہیں ہو سکتا. اور جب بھی یہ اعلان کرتے تو ان کو پیچھے سے کوئی خبر ملتی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے. تو عمران کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ان کو بھی ایک بندہ چاہیے اور وہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور ملے ہیں. تخلیق کائنات کا بنیادی عنصر پانی ہے جس کی بدولت جہان میں روانی ہے. کوثر انجینئرنگ جو آپ تک پہنچائے قدرت کے اس انمول نعمت کو روانی سے، چاہے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے ہو یا پائپ کی صورت میں. کوثر انجینئرنگ کا بنیادی مقصد آپ کے لیے پانی کے حصول کو آسانی کے ساتھ معیاری طریقے سے پہنچانا ہے. اس مقصد کے لیے کوثر انجینئرنگ پچھلے 30 سال سے اپنے صارفین کی خدمت میں کوشاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی معیاری مصنوعات کی بدولت کوثر انجینئرنگ کا نام پاکستان میں واٹر ہینڈ پمپ اور پلاسٹک پائپ انڈسٹری میں خدمت کی ایک پہچان ہے. کوثر انجینئرنگ کے ہینڈ پمپ اور پائپ اپنے معیار کی بدولت پاکستان میں موجود تقریباً تمام مقامی اور عالمی اداروں کی اولین ترجیح ہے. اپنی مصنوعات بناتے ہوئے کوثر انجینئرنگ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ واٹر ہینڈ پمپس ہو یا پلاسٹک پائپ عالمی معیار کے عین مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ ہماری کمپنی مسلسل 8 سال ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز حاصل کرتی رہی ہے. کوثر انجینئرنگ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے بنائے گئے واٹر ہینڈ پمپ میں ایسے میٹیریل کا استعمال ہو جس کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہو. اس مقصد کے لیے ہماری کمپنی اپنے ہینڈ پمپ کو زنک کوٹنگ کے عمل سے گزارتی ہے اور اس کے لیے ہاٹ ڈپ گلوزائن کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کی بدولت پانی نکالنے کا عمل صحت کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے. جبکہ مارکیٹ میں عام بننے والے ہینڈ پمپس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے. کوثر انجینئرنگ ہینڈ پمپ میں استعمال شدہ تمام میٹیریل باہر سے امپورٹ کرتا ہے جو کہ عالمی ادارے سکیٹ کا تجویز شدہ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے صارفین کے لیے نہ صرف پانی کے حصول کو آسان بناتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی محفوظ بناتے ہیں. پانی کے حصول کے پورے عمل میں جتنی اہمیت ایک معیاری ہینڈ پمپ کی ہے اتنی ہی ایک بہترین اور معیاری پائپ کی ہے. کوثر انجینئرنگ میں موجود امپورٹڈ مشینری کے ذریعے بنائے گئے پائپ کو فیکٹری میں موجود لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوثر کی تمام مصنوعات مقامی اور عالمی معیار کے مطابق ہو. کوثر انجینئرنگ کے پائپ اپنے معیار اور پائیداری کی وجہ سے آپ کو دے زندگی بھر کا سکون. تو کبھی وہ موسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں کبھی گرم کرتے ہیں. بات اس نے ابھی تک کوئی ایسا حرکت نہیں کی کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں اور پھر لوگوں کو ڈی چوک تک بلانا پھر خود نہ جانا اور پھر آ کے بشرا بی بی کی رہائی ملنا. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور شاید ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ عمران صاحب خود بھی چاہتا ہے کہ ایک ایسی ٹیم باہر ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیلنگ کرے تو میرے لیے رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے. تو ابھی بشرا بی بھی نکل آئی ہے تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے اب یہ دوسری شخصیت ہے. شاید شاہ محمود قریشی بھی اس طریقے سے اس کو رہائی مل جائے ضمانت پہ. تو ایک طریقہ کار جاری ہے، شاید اس کو ڈیلنگ کے ذریعے نکالنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ آخری ایک حرکت ہے کہ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو شاید عمران کو رہائی ملے، ورنہ بصورت دیگر اس کے لیے جس طریقے سے تیاری ہو رہی ہے تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور ہم تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، ہم کوئی نجومی نہیں ہیں. لیکن بھٹو صاحب جیسے عظیم شخصیت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اگر تمام سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگانا اور ان لوگوں کو جتوانا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو یہ کھیل تو پاکستان سے 70 سال سے پاکستان میں جاری ہے. اب ہمارے جو
खैबर पख्तूनख्वा की बात है। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। हमारी खुशकिस्मती होती अगर वज़ीराना संजीदा होता, लेकिन वो संजीदा नहीं है। तो वो सिर्फ इमरान की रिहाई की तो बात कर रहा है, महंगाई की बात नहीं कर रहा, NFC वार्ड की बात नहीं कर रहा, और यहाँ पे लोगों के हुकूक की बात नहीं कर रहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात नहीं कर रहा। यही वो कि जब अदालत में फैज ईसा साहब जा रहे थे तो कहा कि अगर सीनियर तरीन जज नहीं लगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और जब फैसला हुआ तो जो सीनियर नहीं था, जो ये चाहते थे, वो जज नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना चीफ जस्टिस, तो जो बना उसी चीफ जस्टिस में वो हल्फ उठा रहा था और ये वज़ीर आला सामने बैठा था। तो पता नहीं चलता कि इसमें यानी फैसले की कोई यानी अहलियत है या नहीं है। लोग चाहिए कि जो इस सूबे के हक को मरकज से ले, मरकज को भी चाहिए कि हमारे सूबे को हक दे। अब हमारे यहाँ पे तालीमी इदारों की ज़मीन को फ़रोख्त किया जा रहा है और हमारे वज़ीर आला कह रहे कि मैं PIA खरीद लूँगा, तो यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, लोग भूख से मर रहे हैं, तनख्वाह नहीं है। यानी मेडिकल सतह पे डॉक्टरों के लिए आप यकीन करें कि हमारे अस्पतालों में जो बुरा हाल है वो कभी ऐसा नहीं था। तो ज़रा अपने आप को देखे, ये नुमाइश छोड़ दे, ये डायलॉग भी छोड़ दे, और ये जो जिस तरीके से वो धमकियां दे रहे हैं ये भी गैर संजीदगी का एक मुजाहिरा है, इसको भी छोड़ दे। संजीदगी से हम समझते हैं कि ये इलेक्शन इन्होंने जीता नहीं है। ये यानी जो हमारे यहाँ पे कोर कमांडर थे, जो यहाँ पे मुज़ाकिरात भी किए और 40,000 लोगों को भी लेके आए, फैज़ हमीद, तो वही फैज़ हमीद के बाकियात हैं। और हम समझते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ तवज्जो दे, अमन और अमान की तरफ तवज्जो दे, और इस मुल्क की तरफ तवज्जो दे। और कल को लोग, ठीक है ये बात सही है कि ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला, इमरान को वोट मिला, कल को इमरान को भी वोट नहीं मिलेगा। हमने देखा है कि यहाँ पे लोकल बॉडीज का इलेक्शन था तो लोग उनका सिंबल भी लेना नहीं चाह रहे थे। तो इतनी सी बातें आप लोगों ने सवाल किया, मैं इतना अर्ज जरूर करूंगा कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अमन और अमान का मसला है उसको हल करना चाहिए, NFC अवार्ड का मसला हल करना चाहिए, यहाँ पे जो हमारे मिसिंग पर्सन है उनका मसला हल करना चाहिए। तख्लीक़े कायनात का बुनियादी अंसर पानी है, जिसकी बदौलत जहान में रवानी है। कौसर इंजीनियरिंग जो आप तक पहुँचाए कुदरत के इस अनमोल नेमत को रवानी से, चाहे वो हैंड पंप के जरिए हो या पाइप की सूरत में। कौसर इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद आपके लिए पानी के हुसूल को आसानी के साथ मयारी तरीके से पहुंचाना है। इस मकसद के लिए कौसर इंजीनियरिंग पिछले 30 साल से अपने सारिफीन की खिदमत में कोशा है, और यही वजह है कि अपनी मयारी मसनूआत की बदौलत कौसर इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान में वाटर हैंड पंप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में खिदमत की एक पहचान है। कौसर इंजीनियरिंग के हैंड पंप और पाइप अपने मयार की बदौलत पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम मकामी और आलमी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। अपनी मसनूआत बनाते हुए कौसर इंजीनियरिंग इस बात का खास ख्याल रखता है कि वाटर हैंड पंप्स हो या प्लास्टिक पाइप आलमी मयार के ऐन मुताबिक हो। यही वजह है कि हमारी कंपनी मुसलसल 8 साल एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स हासिल करती रही है। कौसर इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे बनाए गए वाटर हैंड पंप में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक न हो। इस मकसद के लिए हमारी कंपनी अपने हैंड पंप को जिंक कोटिंग के अमल से गुजारती है, और इसके लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसकी बदौलत पानी निकालने का अमल सेहत के एतबार से महफूज होता है। जबकि मार्केट में आम बनने वाले हैंड पंप्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है।
कौसर इंजीनियरिंग हैंड पंप में इस्तेमाल शुदा तमाम मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता है, जो कि आलमी इदारे स्कैट का तजवीज़ शुदा है। हमारा ये दावा है कि हम अपने सार्फिन के लिए न सिर्फ पानी के हुसूल को आसान बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसको सेहत के एतबार से भी इंतहाई महफूज बनाते हैं। पानी के हुसूल के पूरे अमल में जितनी अहमियत एक मयारी हैंड पंप की है, उतनी ही एक बेहतरीन और मयारी पाइप की है। कौसर इंजीनियरिंग में मौजूद इंपोर्टेड मशीनरी के जरिए बनाए गए पाइप को फैक्ट्री में मौजूद लेबोरेटरी में टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कौसर की तमाम मसनूआत मकामी और आलमी मयार के मुताबिक हो। कौसर इंजीनियरिंग के पाइप अपने मयार और पायदारी की वजह से आपको दे जिंदगी भर का सुकून। जो IDPs है उसका मसला हल करना चाहिए। जो रास्ते बंद पड़े हैं और वहाँ पे लोगों को रास्ता नहीं दे रहे हैं, उनको यानी खोल देना चाहिए। और अफगानिस्तान के साथ, अगर हिंदुस्तान के साथ हम रास्ते खोल सकते, कारोबार कर सकते, तो अफगानिस्तान के साथ तमाम रास्ते खोल दिए जाए। और अफगानिस्तान को इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि आपकी अपनी हुकूमत है, अफगानिस्तान जाने, अपना काम जाने, मुझे उनके लिए कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पुख्तून के नाते से तालीम खुदा ने, रसूल ने तमाम लोगों पे फ़र्ज किया है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो औरतों के लिए भी तालीम के दरवाजे खोल दे। और आज जो नशरियात पे लाइव यानी जो फोटो और जो लाइव प्रोग्राम उनको बंद कर दिया गया है, और वो कह रहे कि सिर्फ वीडियो चलेगा, ऑडियो नहीं चलेगा, तो ये किस ज़माने और किस सदी की बात है। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोग वहाँ पे ज़िंदगी भी बसर करें, तालीम भी हासिल करें, और जो अफगानिस्तान के अवाम चाहे तो वो हुकूमत भी बने। कब का लोगों का एक सियासी लोगों की ख्वाहिश थी, आज से बहुत कबल यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस वक्त भी ये मसला उठा था, उसके बाद भी ये था, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में अदालतों की तकसीम कार नहीं है। यानी अदालत तो बन जाता है, लेकिन अदालत मखसूस मुकदमात तो उनका फैसले करते हैं, बाकी अवाम जो है वो इंतज़ार में पिस जाते हैं। तो अब भी तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब लोगों के मुकदमे पड़े हैं। तो आईनी जब अदालत बनेगा तो वो हमारे जो आईन के तकाज़ों के मुताबिक जो मुकदमात हैं, जो सियासी मुकदमात हैं, जो पार्लियामेंट के मुकदमात हैं, जिसमें यानी जजों को बड़ी दिलचस्पी होती है, उसमें खबर भी बनती है, टीवी पे भी खबर आती है, दुनिया में भी खबर बनती है, तो उन मसाइल को तो वो अपनी मफादात के लिए और हालात को देखकर मकबूल फैसले कर लेते हैं, लेकिन अवाम के फैसले रह जाते हैं। तो ये तकसीम कार इसलिए है कि अवाम के जो फैसले पड़े हैं उनको जल्द से जल्द यानी उसको निपटाया जाए। तो इसके लिए तो ये ज़रूरी था कि आईनी यहाँ पे हमारा जो तकसीम है या अदालत है वो तो बनना था, लेकिन वो न बन सका और फिर इन्होंने यहाँ पे डिवीज़न बना लिया। लेकिन बात इतनी सी थी। अब 27वीं तरमीम की बात है तो वो तो हमारे मरकज़ी यानी तंजीम भी है, एमल वली खान साहब खुद सदर भी हैं और सेनेटर भी हैं, तो उसमें वो आईनी में जो नुकात हैं उसको पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद फैसला हो सकता है कि अब हमें फैसला करना है तो क्या करना है। तो हालात और वाक़यात को देखकर फिर उसके रोशनी में फैसला किया जाएगा।